Envelope detector is also applied at the receiver side to demodulate the standard AM signal and receiving the message signal back at the receiver side. तो एनवेलप डिटेक्टर का इनपुट क्या होगा? एनवेलप डिटेक्टर का इनपुट होगा स्टैंडर्ड एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट क्या होना चाहिए? एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट होना चाहिए मैसेज सिग्नल एमटी, राइट? सो लेट अस नाउ ऑब्जर्व द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एनवेलप डिटेक्टर. एनवेलप डिटेक्टर बेसिकली बना होता है दो कंपोनेंट से. Envelope detector is also known as a diode detector. Hence, we'll have a diode, और जो second component है envelope detector का, that will be a capacitor. So basically, we'll have two components in the envelope detector. Component number one is a diode, which will work as a switch. डायोड किस तरह से काम करेगा? स्विच की तरह काम करेगा. दैट मीन्स व्हेन द इनपुट वोल्टेज एट द डायोड इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन द नेगेटिव वोल्टेज, देन द डायोड विल बी शॉर्ट सर्किटेड, एंड व्हेन द इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा, in that case diode will be reverse biased and hence it will be open circuited. So when diode works as a switch, it works as a binary output, either short circuit or open circuit. Capacitor works as a storage device. Capacitor का objective क्या होता है? Capacitor is employed to store the energy in terms of voltage, right? So capacitor will store the energy in terms of voltage. Consider when the diode is forward biased. So when the diode is forward biased, जो input voltage है, it must necessarily be equals to the modulated waveform S of AMT. ये S of AMT डायोड के फॉरवर्ड बायस होने पर चार्ज करेगा कैपेसिटर को. कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड. और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा? व्हाट इज द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट? टाउ. टाउ इज RC and the charging time constant must be equals to RSC, right? So with this time constant, capacitor will be charged with which voltage? With the voltage which is applied at the input of the envelope detector, right? So this is case number one. Case number two, when the diode is open circuit, that means when the diode is off, in that case this will be open circuit and hence capacitor will not be charged with this S of AMT, but it will discharge through this resistor. कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज स्टोर है, जो एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी किसके पास जाएगी? वो एनर्जी रेजिस्टर के पास जाएगी एंड वी विल सी द पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टर. इन दिस केस वी विल गेट द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट व्हाट? RC. टाइम कांस्टेंट इज RC, but discharging time constant will be RL into C. This is the main functioning of the envelope detector. Envelope detector के सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, एक डायोड और दूसरा कैपेसिटर.
diode works as a switch. Diode may have two values, either switch on और switch off. जब डायोड स्विच ऑन होता है तो डायोड शॉर्ट सर्किट होता है. इन दैट केस द कैपेसिटर will be charged by the applied input voltage, which is nothing but the modulated voltage S of AMT, or whatever may be the value of the input voltage. जो भी आप input voltage लगाएंगे, with that input voltage capacitor will be charged. In this case the charging time constant will be RSC. So this is the source resistance, इसलिए इसको बोलते हैं RS. Case number 2, when the diode will be switched off, it will work as an open circuit. In that case, the capacitor will be discharged through the resistance RL. RL, load resistance, इसलिए इसको बोलते हैं RL. लोड के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलता है, इसीलिए जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमको MT, जो MT वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज किसके अक्रॉस मिलने वाला है? लोड के अक्रॉस, इसलिए इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस. सो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज एंड इट विल बी डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टर RL. द टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट विल बी RLC. जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब कि डायोड जब शॉर्ट सर्किट है, इन दैट केस द कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड with which voltage? With the voltage which is applied at the input side. Okay, so capacitor must charge rapidly. कैपेसिटर को इनपुट वोल्टेज को तुरंत अचीव कर लेना चाहिए, right? There should not be any delay when we are charging a capacitor value. Why? Because we need to follow the envelope of the input signal. So if we need to follow the envelope of the input signal, the capacitor must charge very rapidly. Since we have seen the charging time constant is RSC, and time constant क्या होता है? Time constant वो time होता है जब कोई कैपेसिटर अपनी फाइनल वैल्यू का 63% अचीव कर लेता है. Time constant is a time when any capacitor or any storage device achieves the 63% of its final value. So चूंकि मैंने आपको बोल रहा हूं कि कैपेसिटर की चार्जिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, इसका मतलब इसका टाइम कांस्टेंट क्या होना चाहिए? इसका टाइम कांस्टेंट बहुत कम होना चाहिए. It should rapidly charges to whatever may be the value of the input applied at the input side of the envelope detector. It should charge very rapidly. So ये rapidly charge कब करेगा? जब चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होगी. जब चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होगी तो टाइम कांस्टेंट कम होने पर जो फाइनल वैल्यू का 63% है उसको अचीव करने में कम टाइम लगेगा. और जब फाइनल वैल्यू का 63% अचीव करने में कम टाइम लगेगा तो फाइनल वैल्यू को भी अचीव करने में कम टाइम लगेगा. इसका मतलब यह है इट विल चार्ज वेरी रैपिडली. हेंस द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर मस्ट बी वेरी लो. डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट RLC, और कैपेसिटर को इस चार्ज को एनवेलप को होल्ड करके रखना चाहिए. कैपेसिटर को इस चार्ज को होल्ड करके रखना चाहिए. अदरवाइज as soon as the input voltage drops down, charge of the capacitor will also drops down. It should not happen. ऐसा नहीं होना चाहिए, right? So it should hold its charge. Envelope को replicate करने के लिए जो मुझे positive peaks हैं उनको pick करना है, और उनको pick करने के लिए जरूरी है कि कैपेसिटर का जो voltage है it should not drops down rapidly. Hence the discharging time constant should not be very लो. डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि कैपेसिटर डिस्चार्जेस वेरी रैपिडली. टाइम कांस्टेंट कम होने का मतलब है किसी चीज को अचीव करने में कम टाइम लग रहा है. तो अगर डिस्चार्जिंग में कम टाइम लगेगा, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम होगा तो डिस्चार्जिंग फास्ट हो जाएगी ना, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो. इसीलिए डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मस्ट बी हाई.
RLC की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. Why? Because कैपेसिटर शुड होल्ड द चार्ज. जब इनपुट की वैल्यू कम हो, क्या करे जब इनपुट फॉल्स. एनवेलप डिटेक्टर इज अ वेरी सिंपल एंड चीपर. इसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता. Why? Because you need only two components, a diode and a capacitor. इसीलिए इसको रिसीवर साइड पर बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं और रिसीवर महंगा नहीं होगा. इन दिस केस रिसीवर बहुत सस्ता रहेगा. क्यों सस्ता रहेगा? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक डायोड चाहिए और एक कैपेसिटर चाहिए, और ये दो कंपोनेंट्स इतने महंगे नहीं आने वाले हैं, राइट? सो व्हेन वी हैव one to many case, that means there is a one transmitter and multiple receiver. In that case, in this type of system, we are preferably using the envelope detector at the receiver side. Why? Because हमारे पास receivers बहुत ज्यादा हैं और हम चाहेंगे कि उनकी कीमत सबसे कम रहे, और जब उनकी कीमत कम रहेगी तो उससे फायदा होगा हमारे सिस्टम को, राइट? तो उसको कम करने के लिए क्या होता है, आप एनवेलप डिटेक्टर को रिसीवर साइड पर एम्प्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि रिसीवर उस केस में महंगा नहीं होने वाला है. सो दिस इज द वन एडवांटेज ऑफ द एनवेलप डिटेक्टर. इट इज वेरी सिंपल एंड चीपर. ओके, सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव एनवेलप ऑफ द अप्लाइड सिग्नल विल बी प्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट. आउटपुट पर जो भी आप इनपुट लगाने वाले हैं वोल्टेज, उसका पॉजिटिव एनवेलप प्रोड्यूस होता हुआ आपको दिखाई देने वाला है. इसीलिए इस सर्किट का नाम एनवेलप डिटेक्टर रखा गया है. We have seen the envelope detector, a diode, we have a capacitor, we have a source resistance and a load resistance. अब हम समझते हैं कि जब हम किसी इनपुट वेवफॉर्म को अप्लाई करते हैं इस एनवेलप डिटेक्टर पर, तो कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है. कैपेसिटर के पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, आउटपुट वेवफॉर्म प्रोड्यूस होता है, वो किस तरीके का दिखाई देता है. सो विद दिस हमारी जो एनालिसिस है वो स्टार्ट होती है कि एनवेलप डिटेक्टर किस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को परफॉर्म करता है, राइट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई एन इनपुट वोल्टेज व्हिच इज अ सिंपल साइनसॉइडल वोल्टेज. Observe this. Let us take any waveform VIT which is applied to the detector. This is a simple sinusoidal waveform VIT जिसकी maximum value है AI. The maximum value of VIT is AI, and of course the minimum value will be minus of AI. इस waveform को हमने अप्लाई किया हुआ है, कहां पर अप्लाई किया हुआ है? Input of the envelope detector. So we have applied VI at the input of the envelope detector. Let us understand how the capacitor charges and discharges with this type of waveform. Case 1. Case 1. If t, that means time axis, time is less than t1. t1 t एक्सिस पर आपको दिखाई देगा. अब दिस इज द पॉइंट t1, and we are taking a case when the time is in between 0 to t1. So we are taking a case when the time is in between 0 to t1. Observe this case. Consider capacitor is fully discharged. इनिशियली कैपेसिटर पर कोई भी वोल्टेज नहीं है. इसका मतलब कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज स्टोर है वो है 0 वोल्ट्स. इसका मतलब डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर 0 वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है. तो लेट अस ऑब्जर्व द वेवफॉर्म अगेन. व्हेन द टाइम t is in between 0 to t1, as soon as the input voltage exceeds the 0 volts, जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट से ज्यादा होती है, इन दैट केस डायोड के इनपुट टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा
और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर 0 वोल्टेज रहेगा, ऐसा होने पर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस्ड डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और ऐसा होने पर हमारा जो कैपेसिटर है उसके लिए चार्जिंग का एक पाथ क्रिएट हो जाएगा। सो कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड विथ द वोल्टेज विच इज अप्लाइड एट द इनपुट साइड, VIT। सो कैपेसिटर की वैल्यू चार्ज होने लगेगी। सो कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। T1 टाइम पर जो वोल्टेज है AI, इस वोल्टेज तक कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करेगा, राइट। सो if T is less than T1, the input voltage VI is greater than 0. That means it is a positive voltage. Since it is a positive voltage, diode will be forward biased. Forward bias diode provides a charging path to the capacitor, and hence the capacitor will charge itself with the voltage which is applied at the input side of the envelope detector. So this is द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये टाइम 0 से T1 वाला टाइम कैपेसिटर की चार्जिंग का टाइम रहेगा, और जो मैं रेड से आपको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज। द कैपेसिटर विल चार्ज इटसेल्फ विद दिस वोल्टेज। लेट अस समराइज what all we have discussed in this case 1. Case 1 says when the time is in between 0 to T1, when the time is less than T1, input voltage VIT will be greater than 0, hence the diode will be forward biased, and hence forward biased diode is nothing but a short circuit. So it will be replaced by a short circuit. This will provide a charging path to the capacitor, hence the capacitor C will be charged by the input voltage which is applied at the envelope detector, which is nothing but VIT. So capacitor is in the charging mode in this case. In case 1, the capacitor is in charging mode. Case 2, when the time T is equals to T1, T1 टाइम पर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या होने वाला है? It will charge itself with a voltage AI. At time T equals to T1, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू होने वाली है AI, और चूंकि कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हमने कम रखा हुआ है, hence the capacitor will charge very rapidly with the input voltage which is nothing but equals to AI. So in that case, at T equals to T1, the voltage at the capacitor will be equals to AI, which is the input voltage at times T1. Let us summarize the points of case 2. The diode is forward biased, hence we'll have a short circuit. The voltage at the capacitor VC will be nothing but equals to AI volts. And we have another case, case number 3, when T is greater than T1 and less than T2. Okay, so we have another point T2 in this case. What is T2? Let us observe this diagram again. What is T2? We have observed T1. T1 is the time when the input voltage achieve its peak value for the first time. इनपुट वोल्टेज AI को सबसे पहली बार जब अचीव करता है, उस टाइम को हमने T1 नाम दिया है. सो व्हाट इज T2? T2 पर आते हैं. T2 को ऑब्जर्व करने से पहले आप इनपुट को एक बार और दोबारा गौर से देखिए. हम अभी हैं केस नंबर 2 पर, एंड केस नंबर 2 से कि आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका है विद द वोल्टेज AI. कैपेसिटर AI वोल्टेज से चार्ज हो चुका है. नाउ इनपुट वोल्टेज को अब हम
पीक वैल्यू अचीव कर चुका है इनपुट वोल्टेज, तो अब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू पीक वैल्यू से कम होने वाली है. सो द इनपुट वोल्टेज ड्रॉप्स डाउन सर्टेन वैल्यू. इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज है, जो डायोड का इनपुट टर्मिनल है, पी टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उस टर्मिनल पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू से कम होने वाली है, क्योंकि डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज होगा जो कैपेसिटर ने होल्ड करके रखा हुआ है, विच इज AI, और डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने अप्लाई किया हुआ है इनपुट वोल्टेज, जिसकी वैल्यू AI से कम होने वाली है. एज द टाइम प्रोग्रेस, द इनपुट वोल्टेज ऑफ द VIT will reduce. VI की वैल्यू, VIT की वैल्यू, वेवफॉर्म की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और अब इनपुट की वैल्यू क्या होने वाली है? कम होने वाली है. किससे कम होने वाली है? डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर कैपेसिटर ने जो वोल्टेज होल्ड करके रखा हुआ है, दैट वोल्टेज विल बी रेप्लिकेटेड हियर, और वो वोल्टेज की वैल्यू है AI. So in this case, the diode will be off. इस केस में डायोड क्या होने वाला है? डायोड ऑफ होने वाला है, मतलब डायोड ओपन सर्किट होने वाला है, क्योंकि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दी वोल्टेज वैल्यू एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड. हेंस द डायोड विल बी ऑफ. ऑफ डायोड का मतलब ओपन सर्किट डायोड से है, और ओपन सर्किट डायोड का मतलब है कि अब कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने वाला है. और कैपेसिटर किसके अक्रॉस डिस्चार्ज होगा? कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL. हेंस जो लाइन में ड्रॉ करने वाला हूं, वो लाइन अब डिस्चार्जिंग वोल्टेज की है कैपेसिटर की. सो एज द टाइम प्रोग्रेस, capacitor discharge and discharge very slowly. कैपेसिटर should hold its charge. कैपेसिटर को अपना चार्ज होल्ड करके रखना है, क्योंकि हमको एनवेलप की जरूरत है, हमको पॉजिटिव पीक्स को कलेक्ट करने की जरूरत है. दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. During this time, when the input voltage is in between T1 to T2, see the input is changing. Input voltage की वैल्यू नेगेटिव हुई, जीरो को क्रॉस किया, मोस्ट नेगेटिव पीक अचीव किया विच इज -AI. मोस्ट नेगेटिव अचीव करने के बाद अब वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इंक्रीज करने के बाद एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड को क्रॉस किया, और अब पॉजिटिव होके T2 टाइम पर आ चुकी है. ये इनपुट ने चेंज किया है. कैपेसिटर का टाइम जैसे जैसे प्रोसीड किया, कैपेसिटर का वोल्टेज डिस्चार्ज वेरी स्लोली, एंड हेंस इट इज अगेन कोलाइडिंग और अचीविंग द सेम वोल्टेज एट द टाइम T2. सो T2 टाइम पर बेसिकली इनपुट वोल्टेज VI और कैपेसिटर का वोल्टेज VC, वो दोनों सेम वोल्टेज अचीव करने वाले हैं. सो case number 3 says when the time is in between T1 to T2, the diode will be in reverse bias mode. Hence, the capacitor will get a discharging path and will get discharge through a load resistor RL. Now, the discharging time constant is very high. Hence, the capacitor discharges very slowly and holds its charge. Hence, during the time T1 to T2, the diode will continuously be in the open circuit mode and capacitor discharges very slowly. So input voltage, case number 3 says input voltage VIT is less than the capacitor voltage VC. During this time, the diode will be in reverse bias mode, hence it will be open circuited. During this case, the capacitor will be discharged
through the load resistor RL, and discharging time constant will be RLC. Last case, when the input voltage exceeds the capacitor voltage. So when the time exceeds T2 point, case number 4, when the time exceeds T2, that means greater than T2 and less than T3. So T3 is the new point. ये कौन सा पॉइंट होगा? Let us observe where the T3 is. So T3 is the next point, and we are considering a case when the time is in between T2 to T3. Okay, so during this time इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अब क्या होने वाली है? कैपेसिटर वोल्टेज से ज्यादा होने वाली है. तो जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज से ज्यादा होगी तो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज हाई होगा एज कंपेयर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड. हेंस द डायोड will be in short circuit mode, and again the capacitor finds a charging path and will be charged with the applied input voltage. So the capacitor will charge. VIT input voltage will be greater than the capacitor voltage, hence the capacitor will charge through the charging path and will achieve the AI again at time T3. So the diode will be the forward biased. In this case, forward biased diode means the short circuit diode, and then the capacitor will be in the charging mode and will be charged by the applied input voltage. Right? So this is how the capacitor charges and discharges. कैपेसिटर चार्ज करता है 0 से T1 के बीच में, डिस्चार्ज करता है T1 से T2 के बीच में, फिर चार्ज करता है T2 से T3 के बीच में, फिर डिस्चार्ज करेगा T3 के बाद, अगेन डिस्चार्ज करेगा क्योंकि इनपुट वोल्टेज दोबारा कम हो गया है. सो इट विल डिस्चार्ज अगेन. राइट? So this is how it is actually trying to cover all the peaks of the input sinusoidal waveform. इसका ऑब्जेक्टिव है इनपुट के वेवफॉर्म के पीक्स को अचीव करना. आपके पास एक सवाल होगा अब, और वो सवाल ये होगा कि सर हमको डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को, आरएलसी को बहुत ज्यादा क्यों नहीं रख देना चाहिए? कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज ही ना करे, सिर्फ पॉजिटिव को पकड़ के रखा रखे एआई, और उसके बाद एआई को होल्ड करके रखा रहे. उसके बाद फिर अगर पॉजिटिव पीक आता है कोई तो फिर उस पर चार्ज हो जाना चाहिए और फिर उसको होल्ड करके रखना चाहिए. तो डिस्चार्जिंग जरूरी क्यों है? राइट? इसका जवाब आपको मिलेगा आने वाले कंसेप्ट में, जो है डायगोनल क्लिपिंग के नाम से. द नोट नंबर 1 which says the time constant RSC, that means source resistance RSC, that means this is charging time constant. It should be very small, hence capacitor rapidly charges to the input voltage. Capacitor should attain the value of the input voltage very rapidly, hence the charging time constant must be very small. Point number 2, this says the discharging time constant, which is nothing but RLC, and it should be very high. Why? Because capacitor should hold its charge. The capacitor discharges very slowly. We want this. हम ऐसा चाहते हैं. हम चाहते हैं कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम होना चाहिए, हम चाहते हैं कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए. बट डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की भी एक लिमिटेशन होती है. वो क्या होती है वो आप देखेंगे. अगर उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा ले लेंगे, you will see the diagonal clipping. Let us understand कि एनवेलप डिटेक्टर पर जब मैंने इनपुट अप्लाई किया था, जो इनपुट था थोड़ी देर पहले हमने देखा साइनसॉइडल वेवफॉर्म, which is nothing but AI sine of 2 pi fct if applied at the envelope detector, at the input of the envelope detector, what will be the output? Output will be observed after applying the waveform through the filter. फिल्टर में आप अप्लाई करने वाले हैं इस वेवफॉर्म को. एनवेलप डिटेक्टर से जो वेवफॉर्म आपको मिलने वाला है, व्हेन यू पास इट थ्रू द फिल्टर, द आउटपुट ऑफ द एनवेलप विल बी
AI. This is the output V naught, and this is nothing but the envelope of the input. राइट. आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा आपने डायग्राम बना दिया, हमने तो कुछ इस तरह का देखा था, कि ये चार्जिंग हुआ था कैपेसिटर का. दिस वाज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. साइनसॉइडल वेवफॉर्म ये चार्ज हुआ था, एंड देन इट डिस्चार्जेस, एंड देन अगेन इट चार्जेस, then it discharges, then again charge, discharge. इस तरह की वेवफॉर्म आ रही थी, है ना. ये ऑब्जर्व किया था हमने तो, पर आपने तो स्ट्रेट लाइन बना दिया. आपका जो आउटपुट है वो एआई है, जो हमारे आउटपुट से मैच नहीं खाता. तो आप, अगर आपको ऐसा कंसेप्ट मिसकंसेप्ट है, तो आप एक काम करें, आप फिल्टर को पढ़ें एक बार. रेक्टिफायर फिल्टर, एआईसी आपने पढ़ा होगा ना. डीसी एसी को जब डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम, पहले वील रेक्टिफाई द वेवफॉर्म, वी फाइंड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द एसी सिग्नल, एंड देन द रेक्टिफाइड सिग्नल इज अप्लाइड टू द फिल्टर टू रिमूव द रिपल्स. तो रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर को अप्लाई करते हैं. इनपुट सिग्नल के जो रिपल्स होते हैं उसको बहुत आसानी से फिल्टर की मदद से रिमूव किया जा सकता है. सो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कैपेसिटर का आउटपुट देखा था, वो मैंने आपको इस वेवफॉर्म में रेड सिग्नल के थ्रू, जो रेड साइड स्केच से मैंने ड्रॉ किया है, वो आपको कैपेसिटर का आउटपुट मिलेगा. बट ये आउटपुट में क्या है, रिपल्स हैं, और इन रिपल्स को वी कैन इजीली रिमूव विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर. ओके, सो द आउटपुट ऑफ द फिल्टर विल बी AI. This is the output of the filter. This is the desired one. Up till now हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जब किसी एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को एनवेलप डिटेक्टर में फीड किया जाता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट क्या मिलता है. दैट मींस दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव आउटपुट. हमारा जो एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट है वो किस तरीके का आने वाला है, दैट वी हैव सीन अप टिल नाउ. नाउ लेट्स से we are applied, we are going to apply the standard AM signal at the input side of the envelope detector. So let us consider a case we are applying, if the AM signal is applied to the diode detector or envelope detector, then what is the output? See this must be the output of the envelope detector. The capacitor charges with the input voltage, so it charges very rapidly, then it will discharge. इसका ऑब्जेक्टिव है पीक्स को पकड़ के रखना. देन अगेन इट विल चार्ज, देन डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, एंड देन डिस्चार्ज, अगेन चार्ज, देन डिस्चार्ज, चार्ज, discharging, charging, discharging, charging, discharging, and so on. It will go like this. So this is how it is going to collect the envelope of the message signal. सिर्फ पॉजिटिव साइड को कंसिडर करते हैं हम लोग एनवेलप डिटेक्टर में, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू कलेक्ट द एनवेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल. एम्पलीट्यूड को होल्ड करके रखना है, राइट. सो दिस इज द केस व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्टैंडर्ड AM सिग्नल इन द एनवेलप डिटेक्टर. Let us observe some of the inputs and outputs of the envelope detector. Let us consider a case when we are going to apply the input as Vm cos of 2 pi fct. It must necessarily be equals to Vm. Example number 2. Consider a case when we are going to apply St as the input of the envelope detector, which is nothing but AC1 plus Kamt cos of 2 pi fct. So what must be the output of the envelope detector? So we are going to get the AC 1 plus Kamt as the output when we are going to apply the ST. Last case, case number 3. A cos of 2 pi fct plus B sin of 2 pi fct. This can be written as square root of A square plus B square cos of 2 pi fct और f naught t plus theta. इसको पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं. और पोलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे, what you are going to get at the output,
of the envelope detector. So it is going to get the envelope of the cos of 2 pi f ct plus. These are the outcomes when we are going to apply the different kinds of input to the envelope detector. Now let us consider a case where we are going to see the limitations of the discharging time constant RLC. Observe the diagonal clipping. What is the diagonal clipping? Observe. कैपेसिटर आपने इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई किया, कैपेसिटर चार्ज हुआ विद सर्टेन वोल्टेज, देन टाइम कांस्टेंट आपने बहुत ज्यादा रेख के रखा हुआ था, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, सो इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट. देन इट चार्जेस अगेन, discharges very slowly, charges again, then discharges very slowly, and then charges again, discharges very slowly. Since we are discharging very slowly, it is going to miss the rest of the peaks which are available in the input waveform. So it is going to miss these peaks. ये peaks आपको envelope में नहीं मिलने वाले हैं. और जब कोई कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर का आउटपुट अगर इनपुट के एनवलप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो आउटपुट पर एनवलप मिलने वाला है, दैट एनवलप इज नॉट गोइंग टू फॉलो द मैसेज सिग्नल. सो दिस केस इज नोन एज द डायगोनल क्लिपिंग. डायगोनल क्लिपिंग कब होगी? जब आपने डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा लेके रखा हुआ है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज डिस्चार्ज ही नहीं होगा. तो अगर इनपुट की वैल्यू जब भी कम होगी कैपेसिटर के वोल्टेज से, वो सारे पीक मैसेज सिग्नल के आपको नहीं मिलने वाले हैं. राइट? सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट. वी शुड टेक द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट वेरी हाई, but it should follow the message signal. तो मैसेज सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, इसीलिए इसकी एक लिमिटेशन है. और इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या कंडीशन जरूरी है? वील सी दिस. सो लेट अस सी द डायगोनल क्लिपिंग फर्स्ट. See, if the discharging time constant, which is RLC, is too high, when the discharging time constant is very high, then the capacitor discharge very slowly, and during the negative peaks of the envelope, the capacitor voltage remain almost constant, thereby complete clipping of what? Complete clipping of negative peaks. And this effect is called as diagonal clipping. This effect is called as diagonal clipping. So how to avoid the diagonal clipping? कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मैसेज सिग्नल को फॉलो करना चाहिए ना टाइम कांस्टेंट को. Therefore, the time constant, avoid this, the time constant, discharging time constant RLC must be much less than the value of 1 by FM. The unit of 1 by FM is also in seconds. Frequency is in hertz. 1 by F is in seconds. Since we are dealing with the message signal, hence we should take the message signal frequency. So RLC must be much less than the value of 1 by the message signal frequency FM. If we follow this condition, the diagonal clipping will never occur. Condition for the envelope detector. Envelope detector के लिए necessary conditions क्या हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी थी. सबसे पहली कंडीशन क्या थी? एनवेलप डिटेक्टर को कब हम अप्लाई करते हैं? व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1. द एनवेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल विल बी एक्सट्रैक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ द एनवेलप डिटेक्टर ओनली व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1. दिस इज कंडीशन नंबर 1. दूसरी कंडीशन क्या है? चार्जिंग टाइम कांस्टेंट RSC must be very small, hence RSC must be much less than the value of 1 by FC. RSC unit is seconds, 1 by FC unit is seconds. FC is the carrier's
signal frequency. So charging time constant should be much less than the value of 1 by fc. Condition number 2. Condition number 3, RLC should be very high. Hence, it should be much greater than 1 by fc. But it should not be too high. Hence, it should be less than the value of 1 by fm. It should follow the message signal. Therefore, the value of the discharging time constant should be less than 1 by fm. These three conditions are necessary conditions for the envelope detector. If you are going to apply the envelope detector and we are going to follow these conditions, any of these conditions, if not followed, the output of the envelope detector will not be the message signal. You will get some kind of distortions. Okay. So let us see some of the formulas जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे. ये formulas हैं. Formula number 1, RLC must be less than or equals to 1 by omega m. This is not W. 1 by omega m square root of 1 minus mu square divided by mu. Values of RL का मतलब है load resistance, C is capacitor, omega m is nothing but 2 pi fm. Fm is message signal frequency and mu is nothing but the modulation index. So if mu is much less than 1, then we can rewrite and approximate the value of RLC as 1 by omega m mu. गेट के कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है आपको, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इफ द लोड रेजिस्टेंस इज गिवन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज गिवन, मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज गिवन. इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे अक्सर गेट के सवाल में पूछे जाते हैं. हो सकता है आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में दिखाई दें. ओके, लास्ट फॉर्मूला 1 by RLC is greater than or equals to omega m mu sin omega mt divided by 1 plus mu cos omega mt. तो ये दो फॉर्मूले हैं जो एनवेलप डिटेक्टर में, एनवेलप डिटेक्टर के क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है. An amplitude modulated wave S of t is given as 10 bracket 1 plus 0.6 cos 2 pi fct into cos 2 pi 10 power 6t. So अंदर है 2 pi 10 power 3t, बाहर है 2 pi 10 power 6t. Is to be detected by the linear diode detector. Linear diode detector का मतलब है envelope detector. Find the value of discharge time constant and the value of RL if the capacitor is used of 100 picofarad. Discharge time constant का मतलब होता है RLC. This is the formula. Tau equals to RLC less than or equals to square root 1 minus mu square divided by omega m mu. Omega m is 2 pi fm. Fm की वैल्यू दी हुई 10 power 3. So mu की वैल्यू 0.6. Replace this value. You will get 0.212 milliseconds.